Ignited Minds Tutorials has recently released an educational video series on the dual nature of matter and radiation. This topic is relevant for students from Class 12 of both CBSE and the Maharashtra State Board, as well as those preparing for the highly competitive IIT, NEET, and CET examinations. In these videos, students will delve into the fascinating world of matter and radiation, exploring their dual nature and the mathematical concepts that underpin their behavior. The series aims to provide comprehensive knowledge and explanations to help students grasp and excel in this complex subject. By watching these videos, students will gain a deeper understanding of how matter can exhibit both particle-like and wave-like properties. They will explore concepts such as the wave-particle duality theory, the photoelectric effect, Davison-Germer experiment, and more. These videos will not only enhance students' theoretical understanding but also equip them with problem-solving skills required to tackle questions in CBSE, Maharashtra State Board, IIT, NEET, and CET examinations. The series is designed to present the information in a clear and concise manner, ensuring easy comprehension for all students. Ignited Minds Tutorials' commitment to providing quality education is evident in the expertly curated content and engaging teaching methods utilized in these videos. Students can access this valuable resource anytime, anywhere, giving them the flexibility to learn at their own pace. To excel in the dual nature of matter and radiation and ace the crucial CBSE, Maharashtra State Board, IIT, NEET, and CET examinations, students can rely on Ignited Minds Tutorials video series for comprehensive knowledge and clarity of concepts. Of dual nature of matter and radiation. ठीक है, दोहरा चरित्र. ठीक है, दोहरा चरित्र मतलब भाई साहब इसका दोनों कोई भी मैटर का जो रेडिएशन फॉर्मेट में इमिट हो रहा है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर भी होता है. ठीक है, सो लाइट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है. आप चाहे उसको रे ऑप्टिक्स में पढ़ें चाहे वेव ऑप्टिक्स में पढ़ें, what you are trying to understand is basically the electrical field component. ठीक है, तो आपने देखा है, इसको पढ़ चुके हैं अपन. इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी अपन पढ़ चुके हैं. ठीक है, व्हाट इज बेसिकली इंटरफेरेंस बाय डीएससी. डिफ्रैक्शन हमने कल ही क्लोज किया. सो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स इज क्लोज. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जैसे ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं नेचर में और इस पे जब लाइट गिरती है तो चितर बितर होती है. दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग. स्कैटरिंग. पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, these are things that we have already studied and these are more or less characteristics of electromagnetic waves. ठीक है, now particle versus wave nature. ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी में हमने देखा था कि भाई साहब आपके there is a group of scientists which actually believes only in the particle nature of light and there is a group of scientists which believes only in the wave nature of light. तो हाइगेंस हो गए भाई साहब, यंग हो गए, all these are scientists who believe only in the wave nature. और particle nature of light में भाई साहब न्यूटन से लेकर भाई साहब ऑल दीज साइंटिस्ट वर देयर. ठीक है, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आसान सा चैप्टर है, आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने जा रहे हैं ऑलमोस्ट 70 to 80% आपके न्यू कॉन्सेप्ट्स नहीं है. यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी देम फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, यू हैव ऑलमोस्ट कवर्ड देम समवेयर डाउन द लाइन, ईदर इन केमिस्ट्री, मोस्टली इन केमिस्ट्री, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने थोड़ा सा कवर किया था इन द 11th स्टैंडर्ड. ठीक है, ओके, पार्टिकल वर्सेस वेव नेचर. तो आपको देखो ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है जो हमको बेसिकली मिलता है वाईडीएससी में. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न. दिस इज अ रिजल्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट. फिर हमको मिलता है भाई साहब डिफ्रैक्शन, व्हेन लाइट इज मेड टू पास थ्रू अ वेरी थिन स्लिट, और बेसिकली व्हेन लाइट इज मेड टू पास थ्रू अ वेरी नैरो अपर्चर wherein the width of the slit is comparable to wavelength of light, then what we get is diffraction. So the phenomena of interference and diffraction can only be explained by wave nature of light. So diffraction और भाई साहब आपका interference can only be explained by wave nature of light. ठीक है, ओके. जैसे अगर आप देखोगे टू लाइट बीम्स क्रॉसिंग ईच अदर, तो यहां से आपके दो लाइट बीम्स है. यहाँ पे आपका एक टॉर्च है, ठीक है, और ये आपका भाई साहब एक टॉर्च है. तो पार्टिकल्स आपके क्या हो जाएंगे अगर हम यहाँ पे पार्टिकल नेचर को माने. ठीक है, तो टू लाइट बीम्स विच आर क्रॉसिंग ईच अदर, लेट्स अज्यूम दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. और अज्यूम क्या करना है, ये सच है. ठीक है, क्योंकि हमको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलता है दैट इज ओनली अ फिनोमेना व्हिच कैन बी प्रूव्ड इफ वी हैपन टू कंसीडर लाइट एज मेड अप ऑफ फोटॉन्स. क्योंकि ये फोटॉन्स जब इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करेंगे तो उनको बाहर निकालेंगे. फोटॉन्स ने स्ट्राइक किया, बाहर निकाला, स्ट्राइक किया, बाहर निकाला.
तो ये स्ट्राइक करने के लिए इनको खुद का एग्जिस्टेंस जरूरी है, ठीक है, तो ये पार्टिकल का एग्जिस्टेंस जरूरी होगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो हमने मान लिया कि भाई साहब लाइट किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। Thus the particles of two light beams should have collided with each other and should have scattered in the surroundings as shown in the figure। तो भाई साहब स्कैटर होंगे, भाई साहब आप कुछ बॉल्स को ऐसे छोड़ो और कुछ बॉल्स को ऐसे, जैसे वो टकराएंगे धड़क ऐसा हो जाएगी, बस है कि नहीं, ठीक है। सो इट्स लाइक अ बीम ऑफ लाइट विद पार्टिकल्स इज फ्लोइंग हियर, अ बीम ऑफ लाइट विद पार्टिकल्स इज फ्लोइंग हियर। इफ दीज आर ऑल पार्टिकल्स देन आफ्टर कोलिजन दे आर सपोज्ड टू स्कैटर, ये स्कैटर होंगे ही होंगे पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन, बट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग द टू लाइट बीम्स क्रॉस ईच अदर अनइंटरप्टेड। ये भाई साहब एक दूसरे को स्कैटर ना करके अनइंटरप्टेड क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। Hence, once again, the wave nature of light is explained by this example। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट के पार्टिकल नेचर नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रीडोमिनेटली अगर आप देखोगे तो लाइट का वेव नेचर एग्जिबिट हो रहा है, ठीक है। ये जो स्कैटरिंग है ये नहीं हो रही है, ये जो पार्टिकल्स का इधर उधर चितर बितर होना है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से बीम ऑफ लाइट गया और यहाँ पे बीम ऑफ लाइट गया, यू डोंट सी लाइट गेटिंग स्कैटर्ड अवे हियर, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आप वेव थियरी को प्रीडोमिनेटली यूज करते हैं और कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और कहीं कहीं पे आपका पार्टिकल नेचर इतना प्रीडोमिनेटली इमर्ज होकर आता है कि लगता है कि वेव नेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भाई साहब आपके पार्टिकल्स गिर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इसको आप वेव नेचर से कैसे एक्सप्लेन करोगे? देयर इज नो वे इन विच यू कैन एक्सप्लेन दिस बाय वेव नेचर। सो टिल टुडे, ठीक है, देयर हैज बीन अ डिस्प्यूट अबाउट दिस एंड हेंस light is considered, or rather electromagnetic wave is considered to be made up of both particle as well as wave nature, ठीक है, okay। So the wave nature of light was well established by the discoveries of phenomena like interference, diffraction and polarization। ये आपके तीन फिनोमिना हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप वेव थ्योरी से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। Interference, diffraction and polarization are basically phenomena which can only and only be explained by the wave theory of light, they cannot be explained by particle theory। बट द डिस्कवरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किसी भी मेटल सरफेस पे अगर आप लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, हर मेटल की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। सो इफ यू आर मेकिंग लाइट इंसिडेंट on a metal surface which is having a frequency greater than the minimum frequency or the threshold frequency, then you will see the emergence of electrons, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब इमर्ज होंगे और इसकी अगर ज्यादा होगी तो एक्चुअली बेसिकली इनका काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? मैक्स प्लैंक के इक्वेशन के हिसाब से आपका ये होता है एनर्जी ऑफ रेडिएशन और आपका भाई साहब एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये वाली एनर्जी इससे ज्यादा है तो ये काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगी, और अगर ऐसा है कि जितना एनर्जी आपने इंसिडेंट कराया है वो भाई साहब एच प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है, इसके बराबर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको अपन वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज वर्क फंक्शन, ठीक है। दीज आर कांसेप्ट व्हिच यू हैव स्टडीड इन द 11th स्टैंडर्ड। तो ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ पर्टिकुलर रेडिएशन मस्ट possess in order to emit electrons from the metal surface once they are incident on it, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच बी माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा भी लिख सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू वी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। But the discovery of photoelectric effect by Hertz is something which cannot be proved by the wave nature of light, and for that we need to assume that light is a particle। और इसीलिए भाई साहब assumption बहुत जरूरी है कि light is behaving like a particle। इसको आप किसी भी हालत में वेव थ्योरी से प्रूव नहीं कर सकते। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक प्रीडोमिनेंट इफेक्ट है दैट कैन ओनली बी प्रूव if you happen to consider light to be made up of particles, and here we consider light to be made up of photons, ठीक है। If light is considered as a wave, then there should be sufficient time gap between the light incident on the material and the electron gets ejected from that surface, because the electron will absorb the energy from the incident wavefront till it gets the necessary amount of ejection, but experimentally it has been observed that the electron ejection process is instantaneous। वैसा अगर वेव होता था ये, ठीक है, तो ऐसे आता था ये वेव, तो इलेक्ट्रॉन तभी भी एनर्जी अब्सॉर्ब करती थी लेकिन पट्टे से निकलनी नहीं थी, ठीक है, टाइम लगता था उसको। लेकिन यहां पे जैसे ही आपने वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दे दी, आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, फटाक से निकलेगा ये, ठीक है, क्लियर है। इफ लाइट इज कंसिडर्ड एज अ वेव, चलो मान लिया कि लाइट पार्टिकल नेचर नहीं है
और हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। इफ लाइट इज कंसिडर्ड एज वेव, then there should be sufficient time gap between light incident on a material and electron gets ejected from that surface. Electron उस surface से eject हो रहा है, because the electron will absorb the energy from the incident wavefronts till it gets the necessary amount for ejection. But experimentally it is observed that electron ejection process is instantaneous. ये भाई साहब आपका instantaneous process. Are we clear to this one, people? Experimentally, it is also observed that above a particular wavelength or below a particular frequency of light, no electron is ejected when the intensity of light is high. मतलब भाई साहब, अरे यार, ठीक है, ओके, सो लेट्स से भाई साहब आपका दिस इज बेसिकली एक मेटल सरफेस है, इस पे आपने लाइट को इंसिडेंट कराया है। इस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट हैज टू बी एट लीस्ट इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन टू टेक प्लेस। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपका कितनी भी इंटेंसिटी रहने दो, इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, तो आपका भाई साहब ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू आपका फ्रीक्वेंसी, और आपका जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है ताकि आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होवे वो होता है आपका h इंटू फ्रीक्वेंसी नॉट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, और ये हमेशा हर एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है। सारे मेटल्स के लिए एक वर्क फंक्शन है, देयर इज अ मिनिमम वर्क फंक्शन। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू हैपन टू इंसिडेंट लाइट एट जस्ट द वर्क फंक्शन, क्या अपन W नॉट पे, तो आपको भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सरफेस पे मिलेंगे, यू विल ओनली गेट देम एट द सरफेस। समझ में आ रहा है भाई साहब, ओनली एट द सरफेस, ठीक है। जैसे ही आपने भाई साहब एनर्जी जो है वो E नॉट से या W नॉट से ज्यादा किया, ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी कन्वर्ट होगा, तो आपका भाई साहब E क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एच वी माइनस एच वी नॉट, तो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, दिस वुड बी द काइनेटिक एनर्जी एच वी माइनस एच वी नॉट। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, दिस वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। क्वांटम थियरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो क्वांटम थियरी, मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थियरी ऑफ लाइट है ये किसको एक्सप्लेन करता है भाई साहब, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। दिस एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटम थियरी मतलब होता क्या है, क्वांटाइज मतलब क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी क्वांटाइज कब होती है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जन है ना, क्या हम 10.5 स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। आपका स्पेसिफिक नंबर, आपका जो n होगा दैट विल बी अ होल नंबर, हम बोल सकते हैं एक नेचुरल नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। एनर्जी की होती है भाई साहब क्वांटाइजेशन, ठीक है। एनर्जी का होता है भाई साहब आपका क्वांटाइजेशन, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, ओके। क्वांटम थियरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये भाई साहब पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स और क्वांटा, ठीक है। तो ये भाई साहब वेव पैकेट्स होते हैं और क्वांटा होता है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स, मतलब कैसा बोलेंगे, एक पैकेट है या 2 पैकेट है या 1000 पैकेट है या 1500 पैकेट है, ऐसा है, ठीक है, क्वांटा है, ठीक है। तो n की एक स्पेसिफिक वैल्यू, ये n भाई साहब डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 3.5 नहीं हो सकते, 4.25 नहीं हो सकते, वैसे ये क्वांटाइज्ड है, ठीक है। एनर्जी इज बेसिकली क्वांटाइज्ड। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द फोटोन, इसको अपन बोलते हैं फोटोन। फोटोन हैज डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम, इसका भाई साहब एक एनर्जी भी होता है और इसका मोमेंटम भी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स ऑलवेज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो जितने भी फोटॉन्स हैं वो हमेशा जो स्पीड ऑफ लाइट होगा उससे ट्रैवल करेंगे, क्योंकि लाइट अगर आपका फोटॉन से बना है तो ऑब्वियसली दे विल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अलग अलग मीडियम्स में इनका अलग अलग स्पीड होगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ अ फोटॉन भाई साहब क्या होता है, एनर्जी अपन पढ़ चुके हैं इसको, आपके लिए ये कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं है, तो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ चुके हैं इन चीजों को, ठीक है। E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी होती है भाई साहब, अभी आपका भाई साहब वेलोसिटी कितनी होती है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, v अपॉन लैम्डा, मतलब ये c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, c बाई लैम्डा।
तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एनर्जी हो गई एच सी बाई लैम्डा, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जो आपका भाई साहब इतना आ जाएगा, जूल्स पर सेकंड है, और एक जूल की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन कंसिडर करें, मतलब अगर इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंसिडर करना है, कुछ नहीं करना है, 6.626 इंटू 10⁻34 को डिवाइड कर दो किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो आपका यही भाई साहब इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में आ जाएगा। सेकंड का सेकंड ही रहेगा, जूल्स का भाई साहब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? जूल्स का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्चुअली इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होता है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। स्पीड ऑफ लाइट आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, एंड दिस हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका 12400, और ये हो गया आपका भाई साहब लैम्डा, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को, H और C हो गया, देखो यहाँ पे H और C हो गया ना, H को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो H की वैल्यू 6.62, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4.14 इंटू 10⁻⁻15, तो भाई साहब 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू आपका भाई साहब C, दैट इज 3 इंटू 10⁸, ठीक है। तो आप इसको करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में अगर आप लेंगे तो 10⁻⁻10 में, ठीक है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस इज एब्सोल्युटली फाइन टू रिमेंबर, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, मोमेंटम ऑफ फोटोन भाई साहब कितना हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, अभी देखो मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, mv, एनर्जी की वैल्यू भाई साहब क्या होती है, ओके, अगर एनर्जी को मुझे काइनेटिक एनर्जी में लेना हो तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं भाई साहब, दिस कैन बी प्लेस्ड एज हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर भाई साहब मैं यहाँ पे P बाई ई कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा बोलो, एम वी अपॉन हाफ एम वी का स्क्वायर, एम और एम कैंसिल हो गया, एक वी और एक वी कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी हाउ मच, 2/v। तो आपका भाई साहब यहाँ पे मोमेंटम, दिस इज P मोमेंटम, दिस विल बी इक्वल टू 2e/v। समझ में आ रहा है भाई साहब, 2e/v। क्लियर है भाई साहब, यहाँ पे 2e/v। अभी यहाँ पे मोमेंटम ऑफ फोटोन को जनरली हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, दिस इज मोमेंटम इज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं कि मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो E/v होती है, E/v। इस टू को डिसरिगार्ड कर दीजिए क्योंकि टू आपका भाई साहब
मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए तुम क्या ही काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, उनका मास ही क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, इतना अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भाई साहब इसको अगर करेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी हो गई एच सी बाई लैम्डा अपॉन वी, तो ये हो गया भाई साहब एच सी बाई वी इंटू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, तो एच सी बाई लैम्डा, और ये हो गया आपका सी, तो ये कैंसिल, तो ये हो गया एच बाई लैम्डा, ठीक है। तो आप मोमेंटम को मान लीजिए इज इक्वल टू ई बाई सी, मोमेंटम विल बी इक्वल टू ई बाई सी, ठीक है। आर बी क्लियर? तो इसके वजह से एच बाई लैम्डा। रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट मास? हाँ, ये क्या चीज होती है? जब कोई बॉडी मूव करती है किसी वेलोसिटी से, तो क्या उसका मास चेंज होता है? होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है, उसका मास चेंज होता है, लेकिन इतने छोटे में होगा कि उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। सो आपका जब बॉडी कोई मूव करता है, तो ये होता है उसका रेस्ट मास अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये इसका मास है। दिस इज बेसिकली मास ऑफ अ मूविंग बॉडी, दिस इज मास ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब इसका रेस्ट मास, दिस विल बी रेस्ट मास, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और ये हो जाएगा ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ये हो गया आपका मास। तो अभी अब बोलोगे कहाँ भाई, अगर मैं मूव करूं तो क्या मेरा मास चेंज हो जाएगा? होता क्या है, देखो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 10⁻⁸, इसका आप स्क्वायर करोगे, मतलब 9 इंटू 10⁻16, तो 9 इंटू 10⁻16 को अप्रोक्सीमेटली तुम मान सकते हो 10 इंटू 10⁻16, मतलब 10⁻17, मतलब इसको समझो, मैं सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, मतलब ये हो गया कितना, अप्रोक्सीमेटली 10⁻17, है ना। मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, इसकी वैल्यू जब इसके बराबर हो तब जाकर ये कंसिडरेबल है, वरना समझ लो आप 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं, या लेट से 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, ठीक है। 100 किलोमीटर क्या, लेट से आप समझ लो, लेट से 90 किलोमीटर पर आवर के मूव स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस 25 का अगर मैं स्क्वायर करूं यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 1 माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 10⁻17, तो ये हो गया 625 अपॉन 10⁻17। अभी इसको सोचो, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस 0 पॉइंट, यहाँ कहीं पे है 625, उसके बाद तुम कितने गिनोगे भाई साहब, 1 2 3, नहीं 17 तो यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करते करते भाई साहब 17 तक आओगे। तो इसको अगर आप माइनस करोगे तो मतलब क्या आंसर आएगा, इस विल बी अप्रोक्सीमेटली वॉट, 0.999999 ऐसा कुछ आएगा ना भाई साहब, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो आपका कोई चेंज हुआ नहीं, ठीक है। हाँ, आपका भाई साहब चेंज होगा, लेकिन आप जो स्पीड से जा रहे हैं वो कंपेरेबल ही है। तो इसीलिए जितने भी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक मतलब जिनका साइज कंसिडरेबली बड़ा होता है, वो ऐसा स्पीड अटेन ही नहीं कर पाते हैं जिनसे उसके उनके मास में सिग्निफिकेंट चेंज नोटिस हो। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई फोटोन है, वो आपके कंपेरेबल स्पीड को कैचअप करता है, ठीक है। मतलब अगर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या आजू बाजू कोई आ गया, तब जाकर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, देन वी कैन नॉट इग्नोर दिस, ठीक है। राइट नाउ वी कैन इग्नोर दिस बिकॉज दिस इज टू स्मॉल अ फ्रैक्शन, too small a decimal to be actually considered. But if your V becomes comparable to C, V becomes comparable to C, then you cannot ignore it. तब आपको भाई साहब उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए फोटॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दीज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, और जब इनकी वेलोसिटी होती है, when they attain a velocity, then that cannot be ignored. क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि आप तब आपका भाई साहब यहाँ पे मास चेंज होगा, तो मास इज इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन दिस, अगर आपका ऐसा हो रहा है तो ये आपका रेस्ट मास है, ये तब आपका इंपैक्ट कर जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, सो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, ऑब्वियसली ये जीरो होता है। एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज ऑलवेज कंजर्व, कंजर्व मतलब भाई साहब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होती है, ठीक है। एनर्जी एंड मोमेंटम, नंबर ऑफ फोटॉन्स में नॉट बी कंजर्व, ऊपर नीचे होंगे, ठीक है।
अ पार्टिकल कैन अब्सॉर्ब अ फोटोन एंड टेक अप इट्स एनर्जी। मतलब कैसा होता है, कोई पार्टिकल एक फोटोन को अब्सॉर्ब कर लेगा और उसका एनर्जी ले लेगा, ठीक है। ऑल्सो एन एक्साइटेड एटम कैन गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। तो आपका समझ लो ये एटम्स हैं, ये अपने ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स को घुमा रहे हैं भाई साहब। इन एटम को एनर्जी मिली तो ये फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन इधर टपका, लेकिन वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगा तो नीचे आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे भाई साहब एनर्जी एमिट होगी। यही एनर्जी भाई साहब आपका, अगर हाइड्रोजन में देखो लाइमन बाल्मर फास्टन ब्रैकेट पपन सीरीज जो आपके बनते हैं, वो आपके हायर एनर्जी से वन पे टपक रहे हैं भाई साहब, ठीक है। सो ऑल दीज आर लाइमन बाल्मर, ये सब आपके सीरीजेस जनरेट होते हैं, ठीक है। सो आपका कोई भी एटम फोटोन को अब्सॉर्ब कर सकता है और उसको रिलीज भी कर सकता है, ठीक है। So a particle can absorb a photon and take up its energy. Also, an excited atom can grow from one state to another and emit energy in the form of a photon. That's why the number of photons may not be conserved. Okay. Intensity of light. The intensity of light is defined as the energy crossing per unit area per unit time perpendicular to the direction of propagation. Okay. Per the intensity of light is defined as the energy crossing per unit area per unit time perpendicular to the direction of propagation. इसको लिख लीजिए भाई साहब. ठीक है. ओके, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ फोटॉन्स. इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे, एनर्जी ऑफ फोटॉन बेसिकली कांस्टेंट होगी, ठीक है. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है. जितना ज्यादा आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा. तो क्या अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दूं और उसको किसी मेटल सरफेस पे करूं तो क्या क्या चेंज मिलेगा आपको? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा. एक मेटल सरफेस है, उस पर आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं. If that light which is incident is having a frequency that is greater than the threshold frequency, you will see electrons are emerging. ठीक है. अभी मैंने इस लाइट के फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बिना इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दी है. Without changing the frequency of the incident radiation, I have increased its intensity. What changes will you observe in the emission of electrons? क्यों? तो इंटेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे और ये फोटॉन्स क्या करेंगे भाई साहब? इनको और धक्का मारेंगे, ठीक है. लेकिन क्या जो एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ेगा? नहीं. समझ में आ रहा है? एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट इंक्रीज अंटिल अनलेस यू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. इस चीज को समझिए, ठीक है. छोटी छोटी चीजों पे सवाल बन जाएंगे. ये आपका भाई साहब एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे आपने एनर्जी को कांस्टेंट रखा है, समझ लो एनर्जी, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है. ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या? एच बी माइनस एच पी नॉट. तो आपका काइनेटिक एनर्जी जिसको अपन बोलते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी ओके ओके. अरे बस भाई साहब सांस ले लो, ठीक है. तो ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन माइनस एच बी नॉट, मतलब आपका वर्क फंक्शन. दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अभी आपने क्या किया भाई साहब? इसको कांस्टेंट रखा, एनर्जी को कांस्टेंट रखा, लेकिन इंटेंसिटी को बढ़ा दी. अगर आप लाइट के इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो उसका मतलब फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं. यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द फोटॉन्स. नाउ इफ यू मेक देम इंसिडेंट, will you get a higher energy? No. The answer is you will get
तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस एंड हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted from the metal surface, from the metal increases. However, if energy is constant, the kinetic energy of emitted electrons, kinetic energy of emitted electrons will be constant. ये भी भाई साहब आपका कांस्टेंट ही रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके। So the intensity of light is associated with the number of photons. Greater the intensity, greater is the number of photons, and energy of photon अगर आपका constant रहा तो, ठीक है, energy of photon अगर आपका constant रहा। The wavelength frequency of light is associated with the energy of photons. तो wavelength भाई साहब या frequency आपके energy से related है, क्योंकि energy आपकी क्या होती है, h Planck's constant into frequency, और अपन इसको क्या लिख सकते हैं, hc by lambda भी लिख सकते हैं, both ways। तो आपका अगर wavelength बढ़ेगा तो energy कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी तो हाइयर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली भाई साहब वेवलेंथ आपका कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप भाई साहब देखते हो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी के साथ तो भाई साहब इसका क्या इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, ये अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये वाला कम हो जाएगा। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Okay, so the wavelength or frequency of light is associated with the energy of photons. Frequency, wavelength, energy of photon, number of photons, constant by sub. Okay, photon count, number of photons emitted per second by a source. तो आपका सोर्स हो गया पावर, वेवलेंथ लेट्स से आपका भाई साहब लैम्डा है, ठीक है। फोटोन काउंट क्या होगा, लेट्स से किसी सोर्स का पावर आपको मालूम है P है और वेवलेंथ मालूम है आपका लैम्डा है, ठीक है। तो चल रहा है क्रॉस जीरो, झूठ मत बोलो तनले। ओके,
एनर्जी एसोसिएटेड विद वन सिंगल फोटोन, एक सिंगल फोटोन से एनर्जी कितना होता है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। लेट n बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ सोर्स, ठीक है। n आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स मतलब हर एक की एनर्जी कितनी है, एच सी बाई लैम्डा, तो सारे की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच सी बाई लैम्डा, है ना, समझ में आ रहा है। इफ n बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स, एक फोटोन की एनर्जी है एच सी बाई लैम्डा या h इंटू फ्रीक्वेंसी, तो अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो कितना हो जाएगा भाई साहब, n इंटू ई, ठीक है। आपका हो जाएगा पावर कितना हो जाएगा, n इंटू ई हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर है। n बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय अ सोर्स, देखो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर भाई साहब क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम, समझ में आ रहा है ये, ओके। अभी देखो ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है पर सेकंड है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, मतलब n क्या है, n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एन ई कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं समझ लो इसको भूल जाओ, अगर मैं एन ई कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एन ई मतलब क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी पर सेकंड, और टोटल एनर्जी पर सेकंड क्या हो जाएगा, पावर, ठीक है। सो द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इज एन, सो एन ई विल मीन टोटल एनर्जी पर सेकंड, एंड टोटल एनर्जी पर सेकंड इज नथिंग बट पावर, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर द फोटोन काउंट इज गिवन बाय, तो आपका भाई साहब P इज इक्वल टू एन ई हो गया, और यहाँ पे भाई साहब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, P बाई ई, तो P बाई ई दैट इज P बाई एच सी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा P लैम्डा बाई एच सी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके। फोटोन फ्लक्स, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया, तो फ्लक्स क्या होता है आपको मालूम है, देखो एक सरफेस है, इस पे कितना भाई साहब रेज आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, ठीक है। सो फोटोन फ्लक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया, तो अभी आपने देखो पढ़ा P इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई, है ना, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर अपॉन ई, ठीक है। तो आपका भाई साहब n की वैल्यू क्या है, P बाई ई है, और E की वैल्यू क्या है भाई साहब, एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा आपका P लैम्डा बाई एच सी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, P लैम्डा बाई एच सी। फोटोन फ्लक्स, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सरफेस पर सेकंड पर यूनिट एरिया, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। तो अभी आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स को तो पहले बात हम ये लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, अभी हमने हमने जो पी का डेरिवेशन किया, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। अभी इसको पर यूनिट एरिया अगर लेना है तो फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, ये तो है ही एन, पर यूनिट एरिया, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, और एन की वैल्यू भाई साहब आपने क्या ली हुई है यहाँ पे, पी ई बाई ए, मतलब ये क्या हो जाएगा भाई साहब, एन पी लैम्डा बाई ए एच सी, ठीक है, एन पी लैम्डा बाई ए एच सी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीजें हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू एनर्जी करेंगे तो टोटल एनर्जी पर सेकंड हो जाएगा, विच विल बी बेसिकली पावर, हाँ नीचे गया ना भाई साहब, सॉरी, हाँ एनर्जी इज इक्वल टू पी, नहीं पीई ना, पी बाई ए, हाँ सॉरी ई नीचे जाएगा, सॉरी सॉरी ये ई नीचे जाएगा भाई साहब, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा, तो पी बाई ई इंटू ए, एन की वैल्यू हो गई पी बाई ई इंटू ए, तो एन पी लैम्डा बाई ए एच सी, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। सो आपका ये फ्लक्स है, फ्लक्स मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया, व्हाट डज द फ्लक्स, फोटॉन फ्लक्स मीन नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स per second, number of photons per second per unit area, number of photons per second per unit area, ठीक है। Now P refers to the power of the source, that is energy incident on the surface per unit time, thus P by A will be the intensity of the source, ठीक है। तो P by A भाई साहब क्या हो जाएगा, this will be the intensity of the source as it refers to energy crossing per unit area per unit time perpendicular to the direction of propagation, तो phi की वैल्यू हो गई n by A P lambda by A h c, ठीक है, तो ये हो गया फाई का वैल्यू। अभी भाई साहब फाई की वैल्यू कितनी है, एन बाई ए, ठीक है, विच इज हाउ मच, पी लैम्डा बाई ए एच सी, ये वाला आपका एक्सप्लेन हो चुका है भाई साहब, एन की वैल्यू होती है पी बाई ए, हाँ बहुत हंसी आ रही है, ठीक है, ये कुछ चल रहा है उधर भाई साहब,
स्मगलिंग चल रही है कुछ वहां पे, ठीक है। पी लैम्डा बाई ए एच सी, क्लियर है भाई साहब, ओके। अभी अपन इस फ्लक्स को क्या बोल सकते हैं, पी रेफर्स टू द पावर ऑफ द सोर्स, दैट इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। पी बाई ए विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स, ठीक है। पी बाई ए आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी एज इट रेफर्स टू एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज पी बाई लैम्डा बाई ए एच सी, और फ्लक्स की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी, ठीक है। इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी, फ्लक्स के दो वैल्यूज हैं भाई साहब, फ्लक्स का हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया विच कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड एज P by E, P by E A, which can be expressed as P lambda by A H C, which can also be written as intensity upon energy. फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। सो दिस इज बेसिकली फोटोन फ्लक्स, दिस इज फोटोन फ्लक्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या हो जाएंगे, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव anywhere inside the material. We may think that if the electrons can move freely inside the material, then it is also possible that these free electrons can come out of the material by their own, but this is not true, ठीक है। ये अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्री क्यों होते हैं, क्योंकि आपका बैंड थियरी होता है, बैंड थियरी के हिसाब से आपका जो वैलेंसी बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है वो मेटल्स में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब जो आपका वैलेंसी बैंड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली और नेचुरली कंडक्शन बैंड में रहते हैं, और कंडक्शन बैंड में इसीलिए फ्री फ्लो करते हैं। आपके भाई साहब नॉन मेटल्स में क्या होता है, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड में एक फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते वहां तक, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में आपका पॉसिबिलिटी हो जाती है, क्योंकि वो फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो विड्थ है वो कम हो जाता है, तो थोड़ी बहुत आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां टपकेंगे, ठीक है। तो ये तो भाई साहब वो सब बातें हो गई, लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना मेटल सरफेस के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स का सरफेस से फ्री होना एक ही फिनोमिना है, नहीं, ठीक है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड द मटेरियल, लेट्स से अ मेटल, we may think that if the electrons can move freely inside the material, let's say आपका metal यहाँ पे, to be more specific, then it is also possible that these free electrons can come out of the material by their own, but that is not true, ठीक है। If an electron comes out because of its own energy, then a void will be created in the material. भाई अगर खुद की एनर्जी से वो बाहर आया तो एक void क्रिएट हो जाएगा। void मतलब क्या है, एनर्जी लेकर आया तो एनर्जी का गैप क्रिएट हो गया भाई साहब, तो धीरे धीरे ऐसे अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे तो मेटल की एनर्जी भाई साहब क्रैश होती रहेगी, ठीक है, ओके। सो एंड द वॉइड विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ओइंग टू अ चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ द मेटल। अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे अपने आप से निकल आया, एक इलेक्ट्रॉन अपने आप से ऐसे ही निकल आया, लेट्स से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो क्या गैप क्रिएट करेगा, एक एनर्जी का गैप क्रिएट करेगा और दूसरा क्या गैप क्रिएट करेगा, चार्ज का गैप क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे ही कोई नेगेटिव चार्ज बाहर जाती है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, तो इसका मतलब चार्ज भी हो गया और आपका क्या हो गया, एनर्जी का गैप भी क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो एज द वॉइड हैज पॉजिटिव चार्ज इट विल अट्रैक्ट द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रॉन को बाहर से खींचेगा पीछे, ठीक है। एंड एज द इलेक्ट्रॉन कांट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू रेजिस्ट द अट्रैक्शन, इट विल बी इन द वॉइड अगेन, इट विल फिल द वॉइड अगेन, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन जब आप किसी फोटोन को ऑब्जॉर्व करते हैं तो ये भाई साहब चिटकेगा, ठीक है। फोटोन ने क्या कर दिया, एनर्जी के गैप को फिल कर दिया। दोनों भी गैप अगर रहेंगे, देखो एनर्जी का गैप भी है और चार्ज का गैप भी है, तो एनर्जी का गैप जैसे क्रिएट हो तो अभी भाई साहब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हो गया ये इसको खींच लेगा। फोटोन जब आप ऑब्जॉर्व कर रहे हो तो एनर्जी का गैप कवर हो जा रहा है, क्योंकि फोटोन आपको एनर्जी दे रहा है। अब भाई साहब ये चिटक गया है, ठीक है, अब इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये भाई साहब मेंटेन करेगा उसको, तुम जाओ, ठीक है, ओके। सो इलेक्ट्रॉन में इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर सेल्फ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी मटेरियल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर सेल्फ इजेक्शन होगा एनर्जी भी ड्रॉप होगी और चार्ज भी ड्रॉप होगा, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। ये हो जाएगा भाई साहब H इंटू आपका ये हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हो गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गया आपका भाई साहब प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड दिस इज बेसिकली थ्रेशोल्ड, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप भाई साहब इसको लेंगे तो एच सी लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर रेडिएशन टू एंश्योर दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। द वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल सरफेस, ये डिपेंड करता है नेचर, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के
अलग अलग वर्क फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट वर्क फंक्शंस, ठीक है, ओके। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। इस फिनोमिना को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। बाय द मींस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू विल फाइंड इलेक्ट्रॉन एमिशंस हैपनिंग, ओके। चलिए इसको अपन बाद में करेंगे। That would be it from my end for today.